السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع بہت بڑا، ہم نے آپ سے سلام کیا، آپ چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال لهم تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شام سے لے کر اب تک آپ نے نعتیہ کلام کا گلدستہ اور تقریریں آپ نے سماعت کیا۔ مجھ سے قبل آپ نے نقیب اہل سنت سے بڑی اچھی نقابت بھی آپ نے سماعت کیا، اور مجھ سے قبل آپ نے بڑی اچھی اتحاد پر تقریر جو آپ نے سماعت کیا ہے، ایسے ہی تقریر کی ضرورت بھی ہے۔ حضرت علامہ مفتی میوان رضا قادری صاحب قبلہ کی بڑی ہی زبردست تقریر آپ نے سماعت کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آپ کے سماعتوں کے حوالے میں کچھ عرض کروں اس سے قبل کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ٹینشن، کچھ لوگ دائیں بائیں پیچھے بیٹھے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کر ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ شہنشاہ مدینہ انٹرنیشنل کانفرنس میں ہیں تو علماء کرام کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس نے میری امت کے علماء کو دیکھا زارنی، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، ایک بار اور سبحان اللہ۔ جلسہ تو آپ نے بہت سنا، سبحان اللہ۔ یہ بتائیں آج جلسوں کا معاملہ یہ ہو گیا، میں نعت سنتا پڑھتا ہوں کہ عوام زیادہ نعت سنتی ہے۔ آپ نعت 24 گھنٹہ گنگنانا، میں خود پڑھتا ہوں لکھتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی شاعر بھی نعت نہیں گنگناتا، یہ میرا دعویٰ۔ لیکن اسٹیج سے پیغام مات کیا ہونی چاہیے، ہمارے عقائد کیا، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ حالات دیکھتے ہیں کہ ہم مٹھی بھر کے ہیں، ہمارے پاس طاقتیں کیا ہیں، ہم اپنے وقت کو صرف ہم اپنے اوقات کو نعرے میں یا ہم گھومنے میں یا ہم یوں ہی صرف کرتے ہیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کے جلسے کرواتے ہیں، لیکن جلسوں میں دھکا مارنا پڑتا ہے کہ بولے سبحان اللہ، درود پڑھیں، دھکا مارنا پڑتا علماء کو۔ لیکن میرے دوست نبی فرماتے ہیں مجھ پہ درود پڑھو گے تو گھروں میں اللہ غیب سے رزق دے دے گا۔ زندہ باد۔ درود آپ پڑھتے ہیں تو جس کے پیجامے کا سائز چھوٹا ہے بولتا ہے یہ حرام، یہ شرک ہے۔ مسجدوں سے جب آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو بولتا ہے یہ حرام، یہ بدعت، یہ شرک ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ حرام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ بے شک زندہ باد، زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا محبوب العلماء صوفی احمد رضا صاحب قبلہ قادری قلندری نے بہت اچھا پروگرام کو سجایا۔ اتنے علماء شعراء کرام تشریف فرما ہے، شاعر اسلام چاند رضا صاحب قبلہ سے بھی آپ سماعت کریں گے کچھ اشعار۔ بہت سارے علماء
हर एक का नाम नहीं जानता, क्योंकि मैं आपके इलाके का नहीं, मेरा ताल्लुक मुल्क नेपाल से है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखें, हम मुल्क नहीं देखेंगे, हम काउंट्री नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सीने में ईमान है कि नहीं। बेशक जिंदाबाद। कुरान के 27वें पारे ऐलान करते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह। इस पूरी आयत की तफसीर ले लें, क्या न हम भाई देखेंगे न भाई। मेरे हबीब जो आपके और हमारे रास्ते पर हैं, अल्लाह का इरशाद है कि वो अपने बाप को नहीं देखता, वो अपने भाई को नहीं देखता, इसलिए कि हमने उसके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है। चाहे चीन का रहने वाला हो या बांग्लादेश का रहने वाला हो या साउथ अफ्रीका का रहने वाला हो, आप ये देख लें कि हुसैन पाक का गुलाम है या नहीं है, नबी करीम का गुलाम है या नहीं है। और इस दौर में देख लें, सिलसिला चाहे बरकातिया हो, चाहे अशरफिया हो, चाहे चिश्तिया हो, चाहे सरफवर्दिया हो, इस वक्त जरूरत है कि हमारे पांच जो मसलक आला हजरत की डोर है, हाथों में मसलक आला हजरत की तारीफ करने वाला है या नहीं है। इसलिए कि जब 14वीं सदी में कॉन्फ्रेंस पे हमले हुए, मिलाद पे हमले हुए, नबी की अज़मतों पे हमले हुए, तो उस दौर में जो मौलवी रियाल पे भी गया, डॉलरों पे भी गया, उसे दुनिया अशर फैली कहती है, रशीद अहमद गंगोही कहती है, जिसने मुस्तफा के टुकड़ों पे भी कहा है, उसे हम इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजादे गौसे आज़म, फैजादे कुतुबुल मदार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजादे ताजे शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीक रजा शमसी साहब किबला। नारे तकबीर। ये नहीं देखे मुफ्ती साहब आप तकरीर सुनकर मैं भी जरूरत है, आज हटे हुए होते हैं, ये मदारी है, ये अशरफी है, ये बरकाती है, ये चिश्ती है। अरे 4 साल से हमारे पास है, किसी से रिलेटेड है, फैज गौसे आज़म का मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में 2 पार्टी वाले हैं, मान ले आप कोई हिमालय से ताल्लुक रखता नहीं, कांग्रेस है, मैं नेपाल कानून की बात करने लगा। 2 पार्टी वाले हो, अगर वो मुखिया के पोस्ट से जीत जाता है तो वो मंत्री को पुकारता है, मदद मिलती है। इसी तरह हमारे पास 4 पार्टियां हैं। सुभान अल्लाह, एक बार और सुभान अल्लाह। सहरवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, 4 से जो रिलेटेड हो जाएगा कामयाब हो जाएगा। बेशक जिंदाबाद। एक सिलसिले कादरिया में अगर मुरीद है, गौसे आज़म को पुकारेगा, गौसे आज़म मदद कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस खुद फरमाते हैं, मेरा गुलाम कायनात के किसी कोने में हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं वहां पहुंच जाता। तो आज हम ये न देखें कि ये किस सलासिल से ताल्लुक रख रहा है, हम ये देख लें कि मसलके आला हज़रत से ताल्लुक रख रहा है या नहीं। इसलिए इस पे भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि मसलके आला हज़रत है क्या। याद रखें, चारों इमाम के मजमूए का नाम मसलके आला हज़रत है। आला हज़रत ने 14वीं सदी में आपने जो कारनामे अंजाम दिया है, पूरी दुनिया के सामने वो रिजल्ट है कि बरेली के इमाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मौलवियों से जो आपने मुकाबला किया, आपकी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्ना के दौर में बिकने वालों ने बिका, आपके सामने वो रिजल्ट है। लेकिन मेरे इमाम का अकीदा देखें, नान पारा की वाली की शान में सिर्फ एक कसीदा लिखने के लिए कहा गया। आज मामला ये है जो साहिब कलम शायर हैं, कहीं चले जाएं और चाहे किसी और का हो, मालूम हो या ना हो, लेकिन उस शान में मनकबत करते हैं। क्यों? कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। याद रखे मेरे दोस्त, पैसे के लिए अपने जबान को न खोले, तारीफ के लिए न जाए। कोई अगर तारीफ करता हो तो आप तौबा कर लें,
قصیدہ لکھ دے. میرے امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں, بکنے والے کوئی ریال پہ بکے, کوئی تحصیلدار کے نام پہ بکتے, کوئی تھانے-داروں کے یہاں بکتے, لیکن احمد رضا کو مصطفیٰ کی چوکھٹوں پہ بکتا. احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آقا کے لال کے ٹکڑوں پہ بکتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرمت اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا, میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت پا رہے. میرے دوست میں عرض کر رہا تھا, عرض کرتے کرتے اس کے ساتھ آپ تقریر کے کہیں اور چلنے لگا. میں عرض کیا تھا درود پڑھے, سارے لوگ دائیں بائیں دیکھتے رہے. آپ یہاں آئے نہیں, آپ یہاں آئے نہیں. صوفی صاحب قبلہ نے حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ قلندری نے آپ کو بلایا نہیں, مفتی مہمان رضا صاحب قبلہ نے نہیں بلایا, نقیب اجلاس نے نہیں بلایا. آپ آئے مصطفیٰ جانے رحمت میں بلا لیا. بے شک ایک بار اور سبحان اللہ سبحان اللہ نے بلا لیا. انسان جب گھر سے آتا ہے تو خالی آتا ہے, جب ذکر رسول سے جاتا ہے تو مصطفیٰ جھولیاں بھر بھر کے بھیجتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس نیت سے یہاں بیٹھے کہ ہم کسی کے جلسے میں نہیں, مصطفیٰ کے ذکر رسول میں بیٹھے ہیں, ذکر الہی میں بیٹھے ہیں. آپ یہ ارادہ کر لیں جو دل میں ہو, آپ جو چاہتے ہیں علماء کے ذریعے بھی دعائیں قبول ہوتی. سبحان اللہ. یہ نائب رسول ہیں, ان کا مقام بہت بڑا. لیکن پہلے میں آپ کا ایگزام لے لوں. تقریریں میری بہت ہو گئی, جتنی میری عمر نہیں اس سے کہیں زیادہ ہم نے تقریر کر دیا. بابو ہاتھ ملا رہے, بولے سبحان اللہ. ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حساب کتاب جلسہ میں آ کر کرتے ہیں میرے دوست, ایسا نہیں. یاد رکھیں کہ وقت کو آپ وقت کی قلت نامگیر ہے. بچوں کے ہاتھ میں قلم لے لیں. آپ کا بیٹا مدارس دینیہ میں پڑھے, حافظ قرآن بنے, عالم بعمل بنے, ہاتھ میں قلم ہوگا تو غلام احمد رضا بن جائے گا. ہاتھ میں قلم ہوگا تو غلام تاج الشریعہ بن جائے گا. اگر یاد رکھیں اگر قلم نہ ہو تو کیا کیا سکتا ہے. امام اہل سنت نے کتابیں لکھی, لیکن اس کتاب کا نام یاد رکھنا. ان کے کارنامے آج پوری دنیا کے سامنے ہیں, کیونکہ بریلی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا احمد رضا قلندری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے صدر اجلاس حضرت علامہ احمد رضا صاحب قلندری صوفی باصفا بھی ہیں, یہ تشریف لے آئے, ان کا پروگرام بھی ہے اور بہت بڑا یہ کام کرتے ہیں. پردے کی آڑ میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر مسلک اعلیٰ حضرت ہیں. اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کی جہاں بھی آگے ترجمانی کرتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دیتا ہے. بے شک چاہے کائنات کے کوئی ملک ہو, آپ جہاں چلے جائیں, جہاں جائیں, جہاں ہر جگہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. لیکن میں جلسوں میں محض کر رہا تھا جتنی میری بولے سبحان اللہ. میری عمر نہیں رہی زیادہ, ہم نے تقریر کر دیا کئی ممالک میں جا کر. یہ میرے پیر تاج الشریعہ کا فیضان بولتا ہے. نیپالی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ کچھ بول لے, لیکن ابھی تو ہم نے کچھ بولا نہیں. حدیث سناؤں گا انشاءاللہ, حدیث سننا بھی ثواب, مانا بھی ثواب ہے. بولے سبحان اللہ. آج جلسوں کا معاملہ کیا کیا تھکا مارنا پڑتا, آپ درود پڑھیں سبحان اللہ. لیکن حالات کیا ہے, دکھانے کے لیے انسان اسٹیج پر پیسے کو یوں پھینکتا ہے, گڈی کا گڈی. ابھی کسی جلسے میں تھا 5 لاکھ روپیہ جلسہ کے اراکین نے ایسے پھینک دیا, لیکن کسی غریب کو ایک بوڑا چاول نہیں دیا.
50 रुपया नहीं दिया, लेकिन हुजूर अब्र मिल्लत साहब थे, उन्होंने कहा कि हराम कारियों ने तुमने 5 लाख से ज्यादा पैसों को उड़ा दिया और ये तरीका हमारा नहीं है। शायरों को आप 1 रुपया नहीं 1 लाख नहीं, लेकिन जो तरीका है हाथ चूमने के लिए कि कोई और मद्दाह रसूल है। क्या बात, ये नात खाने हबीब है। आप ऐसे देख के कोई देखे नहीं, लेकिन ऐसे देते हैं। जलसों का माहौल खराब हो गया, इसलिए काबिल उलमा सुन्नत अब जलसों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मस्जिद से ही खिताब करने लगे हैं। लेकिन ये जलसा बहुत बड़ा है, कुछ पैगामात देखा जाए, धक्का मारना पड़ता है कि भाई दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने से बड़े फायदे हैं। नबी फरमाते हैं मेरा गुलाम जो दुनिया में मुझ पर जितनी दुरूद पढ़ेगा कयामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब होगा। बेशक बोले आप चाहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत से करीब हो जाओ? अरे हाँ बोलिए ना भाई, चाहते हैं? एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका माना मालूम है? नहीं, आप कहेंगे यार अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला कलंदरी ने ऐसे खतीब को लाया, देखने में तो बच्चा लग रहा था, लेकिन हम लोग एग्जाम लेकर चला गया। मेरे दोस्त, आप मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, क्योंकि आप में जो हमारा रिश्ता है खूनी नहीं है, ये ईमानी रिश्ता, ईमानी। हम यहाँ भी आप हमारे साथ रहेंगे, कल मैदान महशर में भी रहेंगे, चाहे आप अशरफी हो या रज़वी हो या बरकाती हो, किसी पीर से आप मरीद हो, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अहले बैत के गुलाम आप भी हैं, ये फकीर भी है, आले रसूल के चाहने वाले आप भी हैं, ये फकीर भी है। और याद रखें, जो अहले बैत का वफादार होता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, उसकी मौत क्या होती है? वो मोमिन की मौत होती है, और आगे जो मौत होती है शहादत के दर्जे पे फायद हो जाता है। सुभान अल्लाह रोज बोलते हैं आप लोग, क्या माना? एक बात अगर जान के जाएंगे तो आप अगले साल भी जलसे में आएंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं किसी को मालूम, इतने लोग हैं किसी को मालूम नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सुने सुभान अल्लाह का माना है कि अल्लाह पाक क्या है? एक बार जोर से बोले, अल्लाह पाक है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? जब आप बोलते सुभान अल्लाह, आप बोलते सुभान अल्लाह, तो आपको मिलता क्या? ये भी मालूम। एक बार जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, एक बार अल्लाह फरमाता है तेरे गवाह बन जाना, मेरा बंदा जब मुझे पाक कहता है तो मैं उसे भी पाक कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं उसे भी पाक कर देता हूँ। लेकिन सुने, बड़े बड़े नसीब है हम आप, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आप इंसान बनाया है और अपने हबीब की उम्मतियों में पैदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। जिनकी उम्मतियों में पैदा होने के लिए बहुत से नबियों ने दुआ की थी, मौला अल्लाह अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा करना। ऐ रब्बुल आलमीन, बहुत से नबियों ने दुआ की, लेकिन आप बड़े खुश नसीब है कि आप अल्लाह ने इंसान बनाकर अपने हबीब की उम्मती में पैदा कर। इंसान अल्लाह चाहता तो जानवर में पैदा कर देता, कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने इंसान बनाया। आप नमाज पढ़े, 5 वक्त कुरान पढ़े, आप चले रोड पर, तो दुनिया देखे तो देख कर समझ जाए ये तो और नहीं, ये करवाला वाले का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। और डर जाए कि ये जाने वाला कोई और नहीं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये अपने औकात को रोडों पे नहीं गुजारते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं गुजारते हैं, ये पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, चलते हैं रोड पे तो सुभान अल्लाह कहते हैं, अपने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अरे ये वो लोग हैं कि अगर तस्बीह पढ़ते
یہ شرم کی بات ہے، لیکن نماز کب پڑھیں؟ پوچھا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ پڑھیں گے، موت کب آئے گی آپ کا معلوم نہیں۔ ایک لڑکا جوان تھا، حضور اپنے ملت نے فرمایا بیٹا مرید ہو جاؤ، کہا سال ہو جائے، کہا ہو جاؤ، انکار کیا بار بار، 9 مہینے کے اندر میں وہ انتقال کر گیا، اب مرید کہاں سے ہوگا؟ یہ سانسیں جو چل رہی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حیدرآباد کسی جلسے میں ایک غیر مسلم خاتون آ کر سوال کیا جشن شہید اعظم کانفرنس میں، مائک لے کر کے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ یا حسین کرتے ہو، تم پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں کیا جا رہا ہے، برما میں کیا جا رہا ہے، دیگر ممالکوں میں کیا جا رہا ہے، ایک حسین کربلا میں پیدا ہوا کہ یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا، تم میں حسین پیدا اب تک دوبارہ کیوں نہیں ہوا؟ مجمع میں سجدہ چھا گیا، نہ علماء کے پاس جواب نہ عوام کے پاس جواب۔ ایک 80 سال کا بوڑھے چچا کھڑا ہوا اور کہا بیٹی تو شرمندہ کیا کر رہی ہے؟ کیوں شرمندہ کر رہی ہو؟ ارے کنیز فاطمہ جیسی ماں نہیں ملی تو حسین کیسا پیدا ہوگا؟ غلام حسین کیسے پیدا ہوگا؟ پتا چلا اپنے اندر وہ جذبہ لایا، نعرہ سے کوئی فائدہ نہیں، نعرے بہت لگ گئے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اختلاف کو چھوڑیں۔ آپ کے علاقے کے یہ علماء ان کے دامنوں سے وابستہ رہے، یہ کسی کا باپ بیٹا باپ نہیں، نائب رسول پہلے، یہ نائب رسول پہلے، ان کی قدر کرے۔ اسی ہندوستان پر علامہ مفتی بادشاہ عالمگیر کی جب حکومت تھی تو آپ علماء کی بڑی بڑی قدر کرتے تھے۔ فتح عالمگیری دیکھیں کیا مفتی صاحب، عالمگیر بادشاہ علماء کی بڑی بڑی قدر، جب ملا میر عبد الحکیم سیالکوٹی دارالمفتہ میں بیٹھتے تھے تو عالمگیر بادشاہ روغن بادام آپ کے قدموں میں ڈال دیتے اور کہتے تھے ایک ہفتہ ہو جاتا تو لاؤ، اور اسے دسترخوان پر کھانے کا وقت تھا، سارے لوگوں سے کہتے کہ اسے خوب پیو، کیوں؟ اس تیل میں کسی اور کا قدم نہیں، وقت کے نائب رسول کا قدم پڑا۔ علماء کی ضرورت یہاں بھی ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، علماء کی ضرورت کل جنت میں بھی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جمعہ کو صرف کرایا جائے گا، سارے لوگ بتابوں بے قرار ہوں، سوچیں گے یار دل نہیں بھرتا ہے، جی نہیں بھرتا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رب کے دیدار، رب کے جلوے کے دیدار اب روز کریں، چاہے کہاں جائے، سب لوگ میٹنگ کریں گے، چلے نائب رسول کی بارگاہ، یا علماء کی بارگاہوں میں چلے جائیں گے، علماء کرام فرمائیں گے جنتی کہ چلے مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کیا، وما ینطق عن الہویٰ، کائنات میں کوئی بولے تو نہ نظام بن سکتا، نہ قانون بن سکتا، نہ دستور حیات بن سکتا۔ میرے نبی ہو موقع میں بول دے تو شریعت کا قانون بن جائے، میرے نبی ہو مدینے میں بول دے تو مذہب اسلام کا دستور حیات بن جائے۔ یاد رکھیں مصطفیٰ کی زبان وہ زبان ہے جس کی ترجمانی بریلی کے امام جب کرتے ہیں تو یوں بولتے ہیں، ارے اس زبان کی بات کرتے ہو، وہ زبان جن کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ بول دے وہ شریعت کا قانون بن گیا۔ سنیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ بھی نام دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم لوگ بھی نام دیتے ہیں، کیوں نہیں دے؟ یہ علماء اور شاعروں کو میں
अपने इलाके में रहता हूँ, उनसे पूछे कि मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे बादशाह बना दे कि सारा माल मैं शायरों पे खर्चा कर और मैं अपने स्टेज पे बैठता हूँ तो काफी पैसा लिख और शायरों को बहुत देता हूँ। मैंने बुजुर्गों को देखा भी, सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत रिजवान कई खुलफाओं को 50,000 रुपए लेकर बैठे देते कि शायरों को दे, क्योंकि ये किसी और को मकदार नहीं, आमना के लाल के मकदार, ये नाते हबीब खुदा है, आप ये मुस्तफा की मकदार है, ये नात रसूल है, उनको दे, नात पढ़ने वालों तो उलमा साफा करे, क्योंकि ये नाइबीन है, ये आपके बादशाह है। तारीख में मुसलमान जिसने उलमा कदमों से रिलेटेड रहा वो कौम उरूज पे पहुंचे, जिसने उलमा से दूरी किया वो कौम बर्बाद हो गई। बहुत ऐसे ममालिक आता मिलेंगे, लेकिन मेरे दोस्त मैं मुस्तफा जो बोल दे वही शरीयत का कानून बन जाए। सूफी साहब अहमद रज़ा साहब लंदरी ने बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब किया, शहंशाह मदीना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मदीना ऐसी जगह है, मदीना सुभान अल्लाह, जहां आप जाएंगे तो आने का दिल ही नहीं करता। कलेजा मुझको आता है, कलेजा बहुत सारे लोग बदे खजरत के साए में होते हुए नजर आ रहे। काबे के खिलाफ आकर कर मैंने देखा बहुत से ऐसी माँ बहनें फूट फूट कर परमात्मा माँ बहनें रोती हुई नजर आ रही। बांग्लादेश के लोग रोते हुए नजर आए, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ गला से काबा पकड़ कर रोते हैं। अल्लाह इस्लाम के मुसलमानों के लिए भी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। अल्लाह तूने जिस तरह के ऊपर तूने अबाबील के लश्कर को उतारा था, इसी तरह जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम किया जा रहा है, जुल्म सितम के पहाड़ खाए जा रहे हैं, ऐ रब्बुल आलमीन वहाँ तो मुसलमानों के लिए गैर से इंतजाम फरमा दे, उनकी मदद फरमा। अलग अलग चीखों पुकार की आवाज़ें काबे के खिलाफ पटकने के बाद आती है, लेकिन मेरे दोस्त आज वजह क्या है कि हमें लोग नीची निगाहों से देखते हैं? वजह क्या है कि हम मस्जिद से दूर हैं, उलमा से दूर हैं। जिस दिन हम आप कर लें कि हमारा जो सर होगा दुनिया भर के चौखटों पे नहीं, हमारा जो सर होगा अल्लाह के घर के सामने में होगा, मस्जिदों में हमारे सर होंगे। याद रखें, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर लें, दुनिया मिट जाएगी, आपको मिटा नहीं सकती है। गरीब नवाज अकेले आए थे, हिंदुस्तान में मुसलमान हो गए, बांग्लादेश में मुसलमान हो गए, पाकिस्तान में मुसलमान हो गए, नेपाल में हो गए, चीन में हो गए। इस पूरे बड़े सगीर में जितने मुसलमान नजर आते हैं वो सब गरीब नवाज का फैजान छलकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान औलिया इकराम अल्लामा मुफ्ती शफीकुल्लाह साहिब किबला आज बैठे रहते हैं। मुफ्ती साहब कह रहे थे एक बुजुर्गों का फैजान सारे बुजुर्गों पे। सुभान अल्लाह। सबसे पहला बुजुर्ग हिंदुस्तान का सरकारी गरीब नवाज बोले, अरे बोले सुभान अल्लाह। अजमेर ऐसी जगह है जहाँ दुआ कबूल होती है, दुआ कबूल होती है। लेकिन मेरे दोस्त आज हम बैठे हुए एक हो जाए, मोहल्लों में झगड़ा, गाँव में झगड़ा, शहरों में झगड़ा, लड़ाई, ये हराम। आप ये देखें कि पड़ोस में कोई गरीब है तो हम उनकी मदद करें। अल्लाह ने इंसान बनाया ना, इंसान मैंने कहा था अल्लाह चाहता तो जानवर बना दे, लेकिन बनाया नहीं, अल्लाह ने अपने आप को इंसान बनाया। बड़े खुशनसीब है कि हम चलते हैं तो सुभान अल्लाह कुरान करीम पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। मैं आप मस्जिदों में गया नमाज पढ़ने के लिए, बहुत आलीशान मस्जिद है माशाअल्लाह। तो मस्जिद में आप कसीर तादाद में जाकर जमात से नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, अपने इमाम से मिले। लेकिन मेरे दोस्त इंसान बनाया हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, आप अपनी खानकाह से निकलते तो जैसे ही एक गली में जाते एक कुत्ता भौंक रहा था तो आप रोते थे फूट फूट कर। तो मुरीद ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, बात क्या है? तो आपका बेटा मैं पूछो रोने की वजह क्या है? मुरीद ने बहुत जिद किया, इसरार किया, तो आप फरमाया कि जब मैं इस गली से गुजरता हूँ ये कुत्ता मुझसे सवाल करता है, बायजीद बुस्तामी मुझे बता कि तूने कौन से ऐसे नेक काम किए थे कि अल्लाह
ने तुझे इंसान बनाया और मुझे कुत्ता बना दिया है। मेरे दोस्त फख्र करे कि अल्लाह ने इंसान बनाया और आंख भी सलामत, हाथ भी सलामत, पाँव भी सलामत है, फिर भी हम नमाज से दूर, मस्जिदों से दूर, उलमा से दूर, आपस में लड़ते हैं, पड़ोसियों का ख्याल। ये रमजान का महीना, बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़कात भी नहीं निकालते, आप ज़कात निकाले और जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक खुद चल कर जाकर पेश करे कि अल्लाह ने आपको मालिक निसाब बनाया और उनका ख्याल रखें। और मुस्तफा जाने रहमत से लौटाए, किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, वही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दे, वो अब तो फैसला कर दे, क्योंकि मेरे मुस्तफा को भी इख्तियार है, जिसे जितना जो चाहे अता कर दे। जब तो मेरा पीर बरेली से यूं बोलते हैं, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। अरे बोले ना सुभान अल्लाह, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने इंसान बना, हम बड़े खुशनसीब हैं। रमजान मुबारक के रोज़े नबी जो कह दे वही शरीयत का कानून बन जाए। लेकिन एक वाक़या देखिए, बुजुर्गों का कैरेक्टर, हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया। अगर पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी हो तो आपका भी ख्याल, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। हजरत बायजीद बिस्तामी के पड़ोस में एक यहूदी था। और सुनो मेरे नौजवान दोस्त, भाई मेरे जिनसे आप सुने, तकरीर का नाम ले गले फाड़ फाड़ कलेजे निकाल कर 12 साल उम्र से तकरीर करके करके मैं और बच्चा होता जाऊंगा, मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, फिर भी मैं ऐसे ही रहूंगा। मैं बुजुर्गों का लंगर खाता हूँ। बोले मैं लंगर खाता हूँ। लंगर का मसला ये है कि आप जितना चाह रहा है उसका हिसाब ही नहीं होगा, हिसाब ही नहीं है। चाहे एक प्लेट की जगह 9 प्लेट खा ले, हिसाब घर में आप खा रहे हिसाब होगा। आज आप हाफिज साहब क्या खाएंगे, रोटी गोश्त पुलाव, कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ये सूफी साहब का खाना नहीं था, ये मौलाए कायनात का था, या जलाल का था। याद रखो जो लंगर होते, लंगर खाने वाले कभी बीमार भी नहीं रहते। आप रात पर नमाज पढ़ते रहे, रात पर नमाज पढ़ते रहे, पड़ोस में एक यहूदी का बच्चा रो रहा, चिल्लाता नमाज पढ़ते रहे। जब फजर की नमाज कंप्लीट करते हैं तो उस यहूदी के दरवाजे पर हजरत बायजीद बिस्तामी जाकर दस्तक देते, आवाज आई, का मैं फला यहूदी की बीवी का तेरा बच्चा रात में क्यों रो रहा? तो घर के अंदर से आवाज आती है, यहूदी की बीवी बोलती है कि रात भर में पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं, और मेरे कलेजे से दूध भी मेरे सीने से नहीं निकल रहा था कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर खामोश कर दूं। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा बेटा रात भर रोता रहा। हजरत बायजीद बिस्तामी पूछते तेरा शौहर? तो उस औरत ने जवाब दिया, मेरा शौहर कहीं काम पर गया, लेकिन काफी दिन हो गए अभी वो आए नहीं, सामान जो रख कर वो गए थे वो सारा खत्म हो गया। हजरत बायजीद बिस्तामी रोने लगे, रोते हुए बाजार गए, बहुत से सामान खरीद कर लाए और उस यहूदी के घर पे रख दिए। जाकर खानकाह में बैठ गए। जब यहूदी कुछ दिन के बाद आया, बीवी के पास जोर करके खड़ा हो गया और कहने लगा, बीवी माफ कर देना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इतनी ताखीर हो जाएगी, इतना लेट हो जाएगा। बीवी कहती है, मेरे शौहर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बायजीद बिस्तामी ने इतना सामान रख दिया है, इतना अनाज ला करके रख दिया है कि कई महीने खाएंगे, अनाज खत्म नहीं होगा। वो यहूदी दौड़ता हुआ हजरत बायजीद बिस्तामी के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करता है। बायजीद बिस्तामी रोने लगे और कहते, नौजवान अब शर्मिंदा मत कर। पूछने लगा यहूदी, हुजूर वजह क्या है? मैं रात भर नमाज पढ़ता रहा, मैं कुरान पढ़ता रहा, अल्लाह ताला कल मुझसे पूछते, बायजीद बिस्तामी तेरे पड़ोस में पड़ोसी का बच्चा रोता
तिलावत करता रहा, मैं जवाब क्या दूंगा? यहूदी नौजवान ने जब हजरत बायजीद बुस्तामी के जुमले को सुना तो कदम पे चुमा है और खोल उनका पूरे तेवर के साथ, ऐ बायजीद बुस्तामी, हमने आपके रसूल को नहीं देखा है, मदीने के ताजदार को नहीं देखा है। अरे जब आपका इखलाक इतना आला है तो मदीने के ताजदार का इखलाक कितना आला है। मुझे कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। सुभान अल्लाह। इखलाक पेश करेंगे, इखलाक पेश करेंगे। आज तो हम पड़ोसियों के जुल्म से तुम बात हैं, पड़ोसी को परेशान करते हैं, हम साहब को हम गालियां देते हैं। गाँव में लोग गरीब होते हैं, देखें उनका कभी ख्याल नहीं रखेगा, नाम के लिए अगर कहीं पैसे की जरूरत हो तो 1 लाख रुपया निकाल के दे देगा। माँ बाप बिलक बिलक कर होते हैं। मुफ्ती मेवान रजा साहब कह रहे थे कि माँ बाप के बारे में कि वो उसकी नाक खराब हो, ऐसे कुछ हदीस पढ़ रहे थे, बहुत मशहूर है। लेकिन मेरे दोस्त, जिससे माँ बाप नाराज है उसकी सारी नेक काम बेकार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाजी बन जाऊं तो आप क्या करना, माँ बाप एक बार मोहब्बत से देख ले। ये मेरे रसूल ने गारंटी दिया है कि अल्लाह आपको एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा, हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। आप चाहे हिंदुस्तान से जद्दा एयरपोर्ट के बाद आप उतरेंगे, हरम की वादी में एंट्री करेंगे, काबे का तवाफ करेंगे, लेकिन मुफ्ती साहब से पूछे, सूफी साहब से पूछे, इन उलमा से पूछे, या हाजी साहब, हाजियों से आप पूछे, हाजी साहब मुझे बताएं आपने काबे का तवाफ किया, सफा मरवा का सही किया, अरफात गए, मुज़दलिफा गए, मीना गए, हज फतवा से फाता किया, शैतान को टक्करी मारा, क्या आपकी हज की गारंटी है कि आपका हज मबरूर हुआ है? ये उलमा कहेंगे ला, नहीं। हाजी बोलेंगे, जाजे किराम बोलेंगे वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बेटा हिंदुस्तान में हो, बेटा नेपाल में हो, बेटा चीनो जापान में हो, अगर कुरान को एक बार मोहब्बत से देखेगा तो अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अगर मोहब्बत से साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी दिन भर में 100 बार बोले, नबी फरमाते हैं जा अल्लाह उसे 100 मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलिए। अरे माँ बाप मोहब्बत को बोलिए सुभान अल्लाह। आप कितनी ये बात कर ले। आज देखिए दोस्तों को राजी करने के लिए 1500 कुड़िया पेप्सियों में चौक चौराहे पे यूं लुटा देते, लेकिन माँ बूढ़ी माँ घर में बिलक बिलक रो रही, बूढ़ा बाप रोता हुआ नजर आते चाय की दुकानों पर। लेकिन ये दोस्त बाप का ख्याल, माँ का ख्याल, याद रखे माँ के कदमों को चूम ले। आपने अगर कदम को चूमा है गोया कि जन्नत को चूमा है। सुभान अल्लाह, एक बार और सुभान अल्लाह। अब ये यहाँ लोग ये बसाया कि हजरत बीवियों के खिलाफ आज हिंदुस्तान में जरूरत है कि इस्लाम को बच्चे की जरूरत है। आज जरूरत है हिंदुस्तान कि 35 करोड़ तो 1 अरब हो जाए तो कैसे होगा? शादी करें, शादियों में आप तादाद अब कहे एक यहाँ नहीं समझता, दूसरे के चक्कर कहाँ से करें? अल्लाह कहता है निकाह करो, हम तुम्हें मालार बना देंगे। अल्लाह कहता हम तुम्हें रिज़्क़ देंगे, वो रब्बुल आलमीन है जो कायनात का पालनहार है, वादा कर रहा है, वादा कर रहा है हम तुम्हें देंगे। लेकिन आज हम माल जमा करने में लगे रहते हैं। मेरे दोस्त, हमारा अकीदा ये है कि हम मरने के बाद जिंदा होंगे और हमारे लिए न ये जमीन, न ये मकान, न ये बैंक, न ये बैलेंस कोई काम नहीं आएगा। काम आएंगे तो नेक काम, अमाल काम आएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हम क्यों परेशान? माँ बाप को सताने में लगे, बीवियों के खिलाफ नहीं बोलते। नबी फरमाते हैं जो आदमी बीवी को सलाम करता है उसके घर में अल्लाह मान बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस है, नबी फरमाते हैं बीवी को सलाम करो। भैया
बीवी को जो सलाम करता है, नबी फरमाते, बुखारी की हदीस है, अल्लाह उसे मालदार करता है। एक सहाबा नबी की बारगाह में, या रसूलल्लाह, जंगल से लकड़ियां काटता हूं, जंगल से, लेकिन माल नहीं बढ़ता है, माल नहीं बढ़ता है। नबी ने क्या किया? जाओ बीवी को सलाम कर लेना, माल बढ़ जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोलिए। कोई आदमी है? नहीं, कोई ऐसा आदमी है बीवी को सलाम किया होगा। अगर मिसाल के तौर पर इस इलाके का नाम भी नहीं जानता, कहीं लखनऊ की औरतें लखनऊ वाली कहते बुलाता, ऐसा है ना? लेकिन नहीं, मेरे रसूल ने जब अपनी बीवियों को बुलाया तो या आयशा, सुभान अल्लाह, ऐ मेरी खुशबूदार बीवी। इसी तरीके से आप नाम लेकर न पुकारे, ऐसे अलकाब कि आपकी बीवी भी आपसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, घर में जाओ तो बीवी को सलाम कर लो, माल बढ़ जाएगा। सहाबा अमल करते रहे, अर्ज करते, या रसूलल्लाह, माल नहीं बढ़ा। नबी फरमाते, घर में जाना, बच्चों को सलाम कर लेना, फिर अमल करते रहे, कहते, या रसूलल्लाह, माल नहीं बढ़ रहा। फिर कुछ दिन के बाद नबी की बारगाह में पहुंचे, नबी फरमाते हैं, घर में दाखिल होते ही बीवी को सलाम करना, बच्चों को सलाम करना, सूरह इखलास एक बार पढ़ लेना, मुझ पर दुरूद पढ़ लेना, अल्लाह मालदार बना देगा। साहब ये रसूल फरमाते हैं, मैंने इस पे अमल किया है, अल्लाह ने मालदार बना दिया है। साहबा फरमाते हैं, मदीना में उस साहब ये रसूल ने गरीबों में माल को कसरत से तकसीम भी किया है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में माल भी पेश किया। तो अमल करते नहीं। आज हम दुनिया भी ठीक रख रहे हैं, दुनिया भी ठीक रख रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त फिक्र रखे तो इस्लामी फिक्र रख रहे। सुभान अल्लाह। अरे बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सूफी साहब का सजाया है, इन्होंने इनकार किया। मैं नेपाल से आपके पास आया। अच्छा ये बताया, मैंने जितनी बात आपको कहा, इसमें से कोई बात आपका पूरा बोलूंगा तो बोलिए ना। हाँ, सुभान अल्लाह बोलिए एक बार और जोर से, सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत करते हैं कितने लोग हैं? बोलिए। अरे भाई जावेद भाई क्या हाल है? अच्छा, इसी हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, इसी हिंदुस्तान पर महाराष्ट्र का तारीख मखदूम माए मजदूरी का काम कर रहा है, लेकिन माँ की दुआ ऐसी लगी कि महबूब माही कुतुबे मुंबई बन गए। सुभान अल्लाह। थे मजदूर, लेबर पे काम करते थे, लेकिन माँ ने दुआ दी तो कुतुबे मुंबई बन गए। कुतुबे मुंबई। लेकिन मेरे दोस्त, माँ जब मुंबई में कुरान पढ़ती है तो बेटा पापा बहाउद्दीन बनते हैं। माँ जब बगदाद में कुरान पढ़ती है तो बेटा गौसे आज़म बनते हैं। और माँ जब मदीने में कुरान पढ़ती है तो बेटा शहीद आज़म बनता है। लेकिन आज माँ कुरान नहीं पढ़ेगी, जो मोबाइल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया है। किसी हलाल खाने वालों ने नहीं ये बनाया है, हराम खाने वालों, सुअर खाने वालों, मोबाइल। और हर मुसलमान महंगे महंगे से इसमें तंज़ील ईमान रखें, इसमें कुरान करीम रखें, इसमें आप तफसीर रखें, इसमें किताब रखें, इससे आप फायदा उठा लें। सबसे पहले घड़ी बनाया मुसलमानों, और ये सारे नकूज लिख दिया, प्लेन कैसे बनाएंगे, और मोबाइल कैसे बनाएंगे, हेलीकॉप्टर कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर कैसे बनेगा, लिख दिया। अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया, जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो पैसा बाप ले गया, माल बाप ले गया। पहले वो उसका लेकर ईम लेकर चला गया, मुसलमानों को गरीब छोड़ दिया, वो मालदार। अब मोबाइल 50,000 का खरीद रहा हूँ तो जिसके पास 50,000 जाएगा तो ऑटोमेटिक मालदार हो जाएगा। 1 लाख में लैपटॉप होगा ऑटोमेटिक को मालदार हो जाएगा। याद रखें, इसको जरूरत नहीं इस्तेमाल करें। आप सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। आपकी जो और जिंदगी है, हमारी जो जिंदगी है, ये फानी जिंदगी है, इसमें हम काम कर जाए और काम वही करे जिससे अल्लाह खुश हो जाए, रसूलुल्लाह खुश हो जाए, कायनात के लोग नाराज हो जाए तो होने दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ सकता।
لیکن کیا ہے مزاج کیا بن گیا ہمارا؟ مزاج کیا بن گیا کہ گھر میں ماں باپ ذرا دوستوں کو خوش کر کر نبی نے کیا فرمایا الناس ابوکم ثلاثہ، اے لوگوں میرے پاس 3 ماں باپ، کہیں چلے جائیں آپ بڑی سے بڑی بارگاہ، بڑے سے بڑے پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، حضرت آپ دیکھیں بڑی سے بڑی بارگاہ ہو گئی، بہرحال سبحان اللہ، بڑی سے بڑی بارگاہ ہو جائیں، لیکن آپ جب تک کہیں کہیں گے حضور میں بیمار ہوں پریشان ہوں آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی نہیں، لیکن ماں باپ ایسے 3 لوگ ایسے، ایک ماں باپ ایک استاد اور تیسرے ساس سسر، نوجوان بھلے سے خیال نہ دے لیکن بدنام ضرور ہوتا ہے، شادی کے بعد سسرال میں مال دے رہا ہے، لیکن میرے دوست 3 لوگ ایسے ہیں، آپ آنا دے یا نہ دے، خدمت کرے یا نہ کرے، یہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔